Hi, hello, Namaskar. Thank you so much for responding in large numbers to the previous video which I uploaded on the expected date of NABARD examination. Well, 1000% credit goes to Susil sir. It is his information. But soon after the video, lot of people were inquisitive to know that, sir, what is NABARD grade A? Is it same with grade B? And if I am eligible for this examination. So in this video we will be discussing on how if you are eligible for this examination or not. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोग नाबार्ड एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं. वेल आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. पिछला जो वीडियो मैंने अपलोड किया आप लोगों ने उसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया रखा है. उसमें एक कॉमन सा जो सवाल लोगों ने पूछा है कि सर आपने बता तो दिया कि नाबार्ड की एग्जामिनेशन फलाने तारीख को हो सकता है, लेकिन आपने ये नहीं हमको बताया कि सर नाबार्ड ग्रेड ए और ग्रेड बी के लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं. तो आइए इस वीडियो में समझते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस, इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी और नॉट, we will refer to the previous notification that was published and the online procedure that started to fill this application form was from 10th of May 2019 to 26th May 2019. And let me talk first about NABARD grade A, right? So the examination, the number of vacancies that were published were a total 79 in number, and for general it was I think 41 vacancies, and for other disciplines like forestry, finance, economics and agriculture and economics, environment, food processing, land development, soil science, plantation and horticulture, these are the other disciplines for which NABARD invites application form to be filled. But my dear friends, but for the general one you need to be like having a bachelor's degree with a minimum of 50% marks, right? Let's say that you are a graduate but you scored 47% of marks, but still you passed and opted for higher study and went on to pursue postgraduate degree, and there you scored 70%, so still you are eligible. That means if your bachelor's degree, if you are scoring lesser but in postgraduate you are scoring higher, more than 50% marks, you are still eligible. मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रेड ए की जो वैकेंसी आई थी उसमें जनरल के लिए 41 वैकेंसीज आया था. मैं जनरल कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल डिसिप्लिन के लिए 41 आया था. अदर डिसिप्लिन में जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हो, डेयरी टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स हो, एनवायरनमेंट हो, फूड प्रोसेसिंग हो, फॉरेस्ट्री हो, फाइनेंस हो, लैंड डेवलपमेंट हो, सॉइल साइंस, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर हो, ये स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन्स हैं जहाँ पे एक स्पेशलिस्ट डिग्री मांगा जाता है. लेकिन जनरल की जो आती है उसमें एनीवन जिनका बैचलर डिग्री हो जिसमें 50% का मार्क्स हो वो अप्लाई कर सकता है. लेकिन इनकेस मान लीजिए आपने बैचलर्स डिग्री में 47% स्कोर कर रखा है लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखा है, वहां पे आपका 75% मार्क्स है, तो फिर आप भर सकते हो. मतलब ऐसा है कि बैचलर्स डिग्री में कम हो लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट में 50% से भी ज्यादा हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं. आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, राइट? और मैं आपको बता दूं सेम हालचाल, द सेम कंडीशन ऑल्सो प्रिवेल्स फॉर नाबार्ड ग्रेड बी. ओनली डिफरेंस इज दैट देयर इट विल बी आस्किंग यू आई थिंक 55% marks in a bachelor's degree, 60% marks in bachelor's degree, and if you have not scored 60% marks,
but you have pursued postgraduate and there you have scored more than 55% marks, still you can apply. The same concept applies. तो मान लीजिए ग्रेड बी के आप अप्लाई कर रहे हैं एंड देयर आपने ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स हासिल कर रखा है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं. और 60% मार्क्स मान लीजिए आपका नहीं है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट में आपका 55% मार्क्स से ज़्यादा है, तो फिर आप डेफिनेटली अप्लाई कर ही सकते हैं. लेकिन द ओनली डिफरेंस इज दैट इन नाबार्ड ग्रेड बी द नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट वर invited to be filled were only 8 in number throughout India. So you can understand the level of competition that will happen for this examination. Well, I will come up with the other videos on NABARD assistant, how to prepare for NABARD assistant examination that you must be preparing for, that you must be dreaming for. So यही मैं बताना चाहता था. NABARD ग्रेड ए ग्रेड बी के बारे में मैंने बता दिया. नाबार्ड असिस्टेंट के बारे में आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन मेरा समझना है दोस्तों कि एक ड्रीम होना चाहिए ऐसा एग्ज़ाम, क्योंकि नाबार्ड ग्रेड बी में मसलन सिर्फ 4 वैकेंसीज आया था जनरल कैटेगरी में, और ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 8 वैकेंसीज आया था. सो यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ कंपटीशन जो होता है इन बड़े बड़े एग्जाम्स में. खैर, अगले वीडियो में नाबार्ड असिस्टेंट के बारे में बताऊंगा. आप लोग अपना क्वेरीज जो है आप लोग मुझे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम में. ये सब सवाल इंस्टाग्राम से ही लेता हूँ और वहीं से उठाता हूँ. कुछ कमेंट के बॉक्स में आता है तो वहीं से उठाता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल. अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा. अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अगली बार अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बोर्ड में समझाऊं, लैपटॉप पे समझाऊं, तो वो भी बता दीजिएगा. आपकी कोई राय है, सजेशन है, तो कमेंट के सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला है. ड्रॉप योर क्वेरी. मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे. तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल. अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा. नमस्कार जी.